सरकार ने सारी चीज़ों को खुलासा किया है और सब चीज़ें अभी खुली हुई है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि महामारी खत्म हुई है। Even when you try to call someone on the mobile, you see Amitabh Bachchan coming on the line, right? और जैसे कि आपने सुना है, किसी को अगर आप कॉल करते हैं तो उस कॉल पे आप किसकी आवाज़ सुन रहे हैं? अमिताभ बच्चन की आवाज़ सुन रहे हैं। And he is very clear that this pandemic is not over, and he even as he represented the nation, and he's mentioning it to everyone that this pandemic is not over. We need to be alert at this time. Do not take things for granted. जैसा कि अमिताभ बच्चन कहता है कि महामारी खत्म नहीं है, हमें सावधानी से कार्य करना है, हमें सावधानी लेनी है और जो चीज़ें हो रही हैं हमें संयम को पालन करना है। जैसा कि अमिताभ बच्चन इस महामारी के बारे में बता रहा है, वो खत्म नहीं हुई है। So let us, as a church, as the body of Christ, as the representative of our nation, we are the representative of our nation. Let us stand in prayer. We are called to stand forth in prayer as the body of Christ. जैसे कि हमें बुलाया है, हमें बुलाया गया है, आइए हम अपने देशों के बीच में खड़े होकर हम खड़े रहेंगे और अपने देश को हम क्या करेंगे? बचाएंगे। And we need to pray for the other nations also, that God will protect every person, every human being. Yes. और उसी तरह हमें अलग-अलग राष्ट्रों को के लिए भी प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर उन्हें सही सलामत रखे। So shall we pray and ask God to, come and take His rightful place in our lives, and that we will be true living testimonies, and that He will give us wisdom and understanding in running our lives. तो आइए हम प्रार्थना करें और मांगे परमेश्वर से कि वो हमें बुद्धि दे, हमें समझ दे कि हम हमारी जिंदगी सही तरीके से जिए और उसके गवाही के लिए हम खड़े रहें। Our Father in heaven, we come to you from our grace this morning in the name of your Son Jesus, by the power of the Holy Spirit. हे परमेश्वर पिता, हम के सामने आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। Father, we thank you for the gift of life you've given us. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं, आपने हमें इस जिंदगी एक तोहफे में दी है। Father, I pray that you would be with each of us, give us wisdom, give us understanding of God in all that we do. That in everything we do, that we will glorify our Father in heaven. हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमें बुद्धि दे कि हम जो भी कुछ करें हमारी जिंदगी के द्वारा यीशु आपको सारी महिमा मिलेगी। In Jesus' name. ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं। Amen. So as I've been speaking about the 7 pillars which God has told us that we need to build the church on. और जैसे कि मैं 7 खंभे के बारे में बात कर रहा हूँ जो कलीसिया में होनी है और जब जो परमेश्वर चाहता है उसी तरह से होनी है, तो हम सुनेंगे। So we know that these 7 pillars are important for us to build our own lives and build the church. और जैसे कि हम समझते हैं ये 7 खंभे जरूरी है कलीसिया में और 7 खंभे तैयार करने से पहले हमें हमारी जिंदगी को तैयार करना है क्योंकि हम उसके खंभे हैं। Because it says in Proverbs chapter 9 verse 1, it says, God says, wisdom has built her house. She has hewn out her 7 pillars. तो भजन संहिता में नीति वचन में पढ़ते हैं चैप्टर 9 वचन 1 से, बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके 7 खंभे गड़े हुए हैं। So I would say that if you really want wisdom, you need to go to the book of Proverbs. You need to ask God to speak to each of your lives. और सच में अगर आपको बुद्धि चाहिए तो मैं आपको कहना चाहता हूँ आप नीति वचन के अध्याय पढ़ें और प्रभु से बुद्धि हासिल करें। And the word of God is very clear. As I mentioned earlier, it says God says the word of God says if you ask Him for wisdom, He will give it to you in full measure. That God will give you wisdom in full measure. और परमेश्वर का वचन हमें साफ कहता है कि अगर आप परमेश्वर से बुद्धि मांगेंगे तो परमेश्वर आपको दे देगा। Okay, so I'd say I'll just run through the pillars before we go to the. We have already gone through this. It is the mission. It is the Great Commission of making disciples of all nations. Pillar number 1.
और जैसे मैं वापस दोहराना चाहता हूँ ये 7 खंभे क्या है। तो पहला खंभा क्या है, मिशन यानी परमेश्वर का कार्य जिसके लिए हमें बुलाया है। दूसरा शिष्य बनाना और उसके कार्य को आगे लेकर जाना। The pillar number 2 is understanding who you are worshipping is the majesty of God. और The, दूसरा the खंभा है second end. और दूसरा है दूसरा खंभा है परमेश्वर की महिमा, यानी कैसे दिखाएंगे हम हमारे जिंदगी के द्वारा। और हमें समझ मिलनी है कि हम किस तरह से परमेश्वर के राज्य को इस्तेमाल किए जाएंगे। Amen. So we need to learn to worship God and understand that His goodness, how our God works in each of our lives. तो हमें सीखना है, समझना है कि परमेश्वर कैसे हमारे जिंदगी में कार्य करेगा। The third pillar is the mantle. तीसरा खंभा है पवित्र आत्मा का सामर्थ जो हमारे लिए दिया गया है। Amen. The mantle of the Holy Spirit. So it's very important. Is the mantle of God, the Holy Spirit, which empowers and transforms our lives. और तीसरा जो खंभा है वो है पवित्र आत्मा का सामर्थ जो हमें दिया गया है, जो हमें सिखाता है कि हमें किस तरह से हमारी जिंदगी को चलाना है। Yes, it is as long as we are on this earth, the Holy Spirit leads us heavenwards, teaches us how to live a life holy and pleasing to God. और जब तक हम इस संसार में जी रहे हैं और जिंदा हैं, हमें परमेश्वर की आत्मा सिखाती है कि किस तरह और कैसे हमें हमारी जिंदगी पवित्रता से जीनी है और हमें सीखनी है। It is very difficult to live a life holy, but if you ask the Holy Spirit to guide you, He is going to give you the grace to live a life holy and pleasing to Him. पवित्र जीवन जीना है बहुत कठिन है, लेकिन अगर आप परमेश्वर से मांगेंगे तो वो हमें आसान बनाएगा ये पवित्रता की जिंदगी इस संसार में जीने के लिए। The fourth pillar is the message. Is we have to proclaim the message. Yes, we need to tell people what is the message of Jesus Christ. और चौथा खंभा है सुसमाचार कि कैसे हम लोगों को सुनाएंगे इस यीशु के बारे में जो उन्हें सिखाएगा पवित्र जीवन जीने के लिए। So as Jesus was crucified, we need to crucify our sins on the cross of Calvary. और जिस तरह से यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया था, उसी तरह हमें हमारे जीवन में जो जो पाप है क्रूस पर हमें क्या करने हैं, देने हैं। As Jesus was buried, we need to bury our own lives और into the water, or we need to bury our lives as Jesus was buried. और हमें हमारा पाप का जीवन Baptism. गाड़ना है, जिस तरह से यीशु मसीह को पानी से जब वो पानी में जाता है, उसी तरह हमें हमारे पापों को भी क्या करना है, गाड़ना है उसी के द्वारा। And the next is resurrect. We need to resurrect. We need to come up out of our sinful ways and believe that the power of the Holy Spirit, as we rise up, that we can do great exploits in the kingdom of God. और तीसरा है पुनर्जीवित, जिस तरह से यीशु मसीह का पुनर्जीवित हुआ मौत के बाद, उसी तरह हमारा भी पाप का जब अंत होता है, हम जब साबित करते हैं और हम भी पुनर्जीवित जी उठते हैं और हमारे जिंदगी के द्वारा जो नई शुरू होती है, वो नई से हमें क्या करनी है, शुरुआत करनी है। And the fifth is, the method is discipleship, fellowship, communion and prayer. और पांचवा है अलग प्रकार जो हमें Discipleship, fellowship, पहला है communion, क्या, शिष्य बनाना, दूसरा है संगति में रहना, तीसरा है प्रार्थना, fellowship and prayer. तीसरा है कि संगति और चौथा है प्रार्थना And communion. और प्रभु भोज। ये Yes. सब मिलके हमें ये प्रकार क्या करने पालन करने हैं। So the first is discipleship. The first is discipleship. और पहला क्या है, शिष्य बनाना। And we got to understand that discipleship is not a one-day job. It is a process. और हमें एक बात समझनी है, शिष्य बनाना ये एक दिन का काम नहीं है, लेकिन उसको समय लगता है और बहुत बड़ा कार्य है वो जो हमें शिष्य करते समय करना है। And discipleship has come out of the word of discipline. If as Christians we do not discipline our lives, it's very difficult to see success as a disciple.
और हम देखते हैं शिष्य ये शब्द कैसा है, पहले क्या है डिसिप्लिन, यानी हमें अपने अपने आप को शिस्त में लाना है। अगर हम अपने खुद को शिस्त नहीं सिखाते हैं तो हम शिष्य भी नहीं बना पाएंगे। So if a disciple is disciplined, he can do great exploits for the kingdom of God. और अगर शिष्य को सही तरीके से सिखाया जाता है तो वो बड़े बड़े कार्य परमेश्वर के लिए करेगा। And the very important part is first self-discipline, is first to be self-discipled. It's so important. And unless we are self-disciplined, we are self-discipled. Yes, if we desire discipleship, I believe God will start moving and doing great works in our lives. तो हमें समझना है कि हम जब शिष्य बनाते हैं तो पहले खुद को तैयार करना है, खुद में वो सही शिष्य लाना है। अगर हम अपने आप को बनाते हैं, हम अपने आप को अगर तैयार करते हैं, तभी हम क्या करेंगे, शिष्य बना पाएंगे। So we know in Proverbs 21, 29, 18 it says, without vision people perish. और जैसे कि हम पढ़ते हैं नीति वचन में, अगर परमेश्वर का कोई दृश्य नहीं है तो लोगों का भी नाश हो जाएगा। Yes. So as a disciple, we need to carry the vision of God. What is God's vision? What is God's plan and purpose for our lives? तो जैसे कि हम शिष्य बनते हैं और हमें जानना है कि हम ये दृश्य को कैसे आगे लेकर जाएंगे, जो दर्शन परमेश्वर से हमें मिला है, हम कैसे उसको आगे लेकर जाएंगे। So a vision is the source of discipline. Vision is the source of discipline. और ये दृश्य, जो दृश्य हमको मिलता है, जो परमेश्वर का जो दृश्य है, वो क्या करता है, वो हमें एक सही तरीके से क्या करता है, हमें शिस्त में लाता है इस विजन को, इस दृश्य को आगे लेकर जाने के लिए। And we see that discipline is the root of leadership. और हम देखते हैं अगुवाई बनने का जड़ क्या है, डिसिप्लिन, शिस्त। Now, many of us watch TV, don't we? We watch a lot of programs on TV, and we also watch a lot of sports. Okay? Now, to be a successful sportsman or a cricketer or an athlete or whoever you are as a sportsman, now to succeed, to be a sportsman, don't think they're just earning crores like that. They put in a lot of discipline in their lives to be good sportsmen. और जैसे कि हम देखते हैं बड़े बड़े जो स्पोर्ट्समैन हैं, जो खिलाड़ी हैं, अब उनको देखते हैं तो वो एक दिन का काम नहीं है कि आज वो बड़े खिलाड़ी बने हैं और अच्छा कमाते आए, नहीं, उन्होंने भी अपनी जिंदगी में शुरुआत से कई चीजें लगाई है, उन्होंने डिसिप्लिन किए हैं, बहुत से कार्य उन्होंने सीखे हैं जो आज इस जगह पे पहुंचे हैं। So we have a lot of people who have got their gold medals and all that. It doesn't just happen overnight. It is a lot of discipline they put in their life to be successful. जैसे कि हम देखते हैं बहुत से खिलाड़ी हैं, बहुत से लोग हैं जो अच्छे बड़े गोल्ड मेडल जो उनको मिलता है, वो सिर्फ कम कामों में नहीं, उन्होंने भी बहुत डिसिप्लिन किया है, बहुत चीजों को अपनी जिंदगी में लाया है, जिसकी वजह से आज वे तैयार हुए हैं अच्छे खिलाड़ी बनने के लिए। People trust this disciplined people. Yes, if you are disciplined, people will trust you. और लोग अगर आपको देख रहे हैं, लोग आपके ऊपर भरोसा रख रहे हैं, तो एक ही चीज है जो उनको आपके पास जाएगी, वो है आपका खुद का जीवन किस तरह से आपने अपने आप को डिसिप्लिन किया है। And we see most of the time, we see that many of these cricketers like Sachin Tendulkar and all these big cricketers, Gavaskar and all that, they become brand ambassadors for different companies. Yes. Now, to become a brand ambassador, they have put in a lot of work first. They have disciplined their life. Because they have disciplined their lives, today we see that they are being paid a lot of money to be advertising their brand. So, in the same way, if we discipline our lives, our brand is Jesus Christ. Yes, our brand, our life will reflect Christ. If people see us, they need to see Christ in us, the hope of glory. और जैसे कि हम देखते हैं सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, ये बड़े-बड़े खिलाड़ी एक दिन में वो खिलाड़ी नहीं बने हैं, उन्होंने भी अपने आप पर बहुत सा काम किया है जो बहुत कठिन है,
क्योंकि इन लोगों ने ये सब काम किया है, अपने खुद की जिंदगी में उन्होंने अपने आप को बनाया है, तो आज वे बड़े खिलाड़ी बनकर एक बड़े बड़े कंपनी के लिए एक ब्रांड बनते हैं और वो क्या करते हैं, उनका नाम वापस जुड़ाया जाता है। उसी तरह से अगर हम आज अपनी जिंदगी को, अपने खुद की जिंदगी को अच्छी शिस्त लगाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, क्योंकि हम भी बड़े परमेश्वर के यीशु मसीह की क्या है, गवाही है, उसकी हम संतान है। So discipline comes from vision. If you have a vision, if you have a drusha, you have a vision, you have discipline that I need to fulfill my vision. For fulfilling my vision, yes, I need to be disciplined. तो उसी तरह से अगर आपका कोई दृष्टांत है, आपका कुछ बनने का दृश्य है, तो वही आपको क्या करेगा, सही तरीके से शिस्त सिखाएगा, वही आपको क्या करेगा, डिसिप्लिन करेगा आपकी खुद जिंदगी के लिए जो दृश्य को आगे लेकर जाने के लिए। The vision gives you a goal. जब आप दृष्टांत रखते हैं तो आपका भी ये क्या होता है, एक गोल रहता है उसको हासिल करने का। Now, if you know that if you need to go from Kalangur to the airport, so there is a journey, right? From Kalangur to the airport. Now, you know that that is your destiny. Now, if you do not get up early in the morning, if the flight is early and you say, no, I'll go whenever I have to go, it doesn't work. Does it work? Yeah? If a taxi driver says that I'll go anytime, it's not going to work because there is no discipline. Nobody will hire your services. In the same way, in life, people will pay for your discipline. और जैसे कि हम देखते हैं, अगर आपको कहीं जाना है, अभी कानपुर से आपको कहीं जाना है और आपका सफर है फ्लाइट में और फ्लाइट का भी समय रहता है, इसका अर्थ ये नहीं कि आप अपनी मनमानी करेंगे और अपने समय में जाएंगे, नहीं। अगर आप अपने समय में जाते हैं, अपने आप को सही तरीके से समय पे लड़ी लगाते हैं, तो आप क्या करेंगे, मिस हो जाएंगे। तो उसी तरह से अगर हमें कुछ पाना है, हमें अपने आप को कुछ करना है, तो उसका भी दाम चुकाना पड़ता है। So without vision, it says people perish. That means without vision, there are all people without vision are losers. They have nothing in life. They have no vision. They are just losers without vision. तो हम देखते हैं जिसके पास दृष्टांत नहीं है, जिसके पास कोई आगे बढ़ने का दृश्य नहीं है, वे सब लोग क्या है, बेकार है, उनके पास कुछ भी नहीं रहता है। Now, a person with vision will live a life very narrow, a life of discipline. He will know that he has to get up in the morning, he has to go to work, he has to take make all the sacrifices in order to ensure that his life is disciplined. और जिस इंसान का जीवन एक डिसिप्लिन की तरह वो बनाता है, तो उसका रास्ता क्या है, छोटा है, लेकिन वो अपने आप को तैयार करता है। इसका मतलब क्या है, सुबह उठेगा, अपने प्लान करेगा, वो अपने दृश्य को देखेगा और वो क्या करेगा, अपने आप को शिस्त में लाके उन चीजों को वो पा लेगा। A vision cannot be taught. I cannot teach you a vision. दृश्य किसी को हम सिखा नहीं सकते हैं। A vision needs to be caught. दृश्य क्या है, उसको हमें क्या करना है, पकड़ना है, हासिल करना है। So when you catch a vision, you want to run with that vision. You're excited about it. और जब आप कोई दृश्य देख रहे हैं, तो क्या होगी, आप में वो क्या रहेगी, जोश रहेगा, आप में वो उत्साह बढ़ेगा, आप उसके लिए क्या करेंगे और क्या रहेंगे, आनंदित होकर उस दृश्य को पाने के लिए क्या करेंगे, लगे रहेंगे। When you have a vision, it simplifies things. It makes life much easier when you have a vision. और आपके पास कोई दृश्य है और दृश्य को लेकर अगर आप जा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, आपको क्या करेगा, प्रकाशित करेगा, आपको वो दिखाएगा, साबित करेगा कि आप क्या है। Your vision will control your choices. आपका दृश्य आपको क्या करेगा, काबू में लाएगा। जो कोई चीज आप चुनते हैं, वो आपको काबू में लाएगा। You'll say, okay, I want to do this and I will not do this today. Yeah? If I have a vision, say you have a vision to lose weight. तो आप क्या करेंगे, आपकी दृष्टि को पाने के लिए जो चीजें आपको करनी है आप वही करेंगे, जो आप करना चाहते हैं लेकिन वो आपके लिए सही नहीं है, आप उन चीजों को छोड़ेंगे। उदाहरण के तरीके पे क्या करेंगे, अगर आप अपना वेट लूज करना चाहते हैं, If you have a vision, you decide that you have to have your food on time. Yes? आप क्या करेंगे, अगर आपका दृश्य क्या है कि आपका वेट, आपका वजन कम करना है, तो आप अपने खाने के लिए भी क्या करेंगे, सही तरीके से शिस्त लगाएंगे। If you have a vision for keeping yourself fit, yes, physically fit, what do you need to do? Get up and go for a walk. Get up early and go for a walk. You don't sit in the bed and roll around and say, no, I'm getting a dream now. Yes? That's not a vision. You don't get a vision by rolling in the bed.
तो उसी तरह से आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, तैयारी करना है, सुबह उठेंगे, आप व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। हाथ पर लेकर आप दृश्य को नहीं दे सकते हैं कि आप खाली क्या कर रहे हैं, अपने आप को वापस समय आप खराब कर रहे हैं। People always use the word, you know what, I had a dream. Yes, they want to talk a lot about their dreams. Good dreams. You have to filter the dreams, whether it's from God and not from God. It's good to have a dream. Yes, but what's a dream? A dream is like a vision. Yes, a dream is a vision when you sleep. But if you have a dream, if you have a vision in the day, you will have a dream in the night of the same thing. You cannot have a different thing. When you keep pondering on things, no? Yes or no? When you keep worrying about issues, you will start dreaming about those issues even in the night, in your dream. और उसी तरह से हम देखते हैं कि आप खाट पे समय बिता रहे हैं, खाली सपने देख रहे हैं। सपना कोई सपना नहीं है, सपना वो है जिसके लिए एक हकीकत बन जाता है। वो सपना जिसका आप कुछ हकीकत है, उसको लेकर क्या करेंगे आप आगे बढ़ेंगे। हम सपने देखते हैं, अगर हमारे मन में कोई विचार है और वो आपको बार बार आ रहा है, उसी के दरमियान आप क्या करते हैं, सपने देखते हैं और वही आपके मन में जो रहता है वही आप सपने में देखते हैं। लेकिन सपना ये अलग है, ये जो सपना आप देख रहे हैं वो क्या एक हकीकत है और आप उस सपने को देखकर क्या कर रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं उसको पाने के लिए। And when you have a sapna, you have a vision. Yes, you will not roll in your bed. You will get out of your bed. It will not allow you to sleep. और ये सपना जो आपकी जिंदगी का एक हकीकत है, तो आप खाली खाट पर सोकर सपना बोल के सपना के साथ समय नहीं बिताएंगे। लेकिन आप क्या करेंगे, उस सपनों को लेकर आप खाट से उठकर क्या करेंगे, उसके लिए कार्य करने के लिए आप शुरुआत करेंगे। Your vision defines of what you do in your life. Your vision will define what you are doing in life. Yes. और आपका सपना आपकी खुद की जिंदगी को साबित करेगा कि आपकी जिंदगी क्या है और वो क्या कर रही है। People have visions of making a lot of money, which is good, no problem. बहुत लोगों के पास बड़ा दृश्य रहता है, सबका रहता है, वो क्या करना, पैसे कमाना, कि मैं भी अमीर बन पाऊं। But becoming a slave to money is a problem. लेकिन पैसों का गुलाम बनना वो प्रॉब्लम है। We need to understand that money needs to run after us. We do not need to run after money. हमें एक बात समझनी है, हमें पैसों के पीछे भागना नहीं है, पैसा हमारा पीछे भागना है। So very important to understand is that money is also a root cause of all evil. That means you have time for everything, but you have no time for God. Now let me tell you something, that if you have no time for God, you will be a slave to money. जैसे कि हम जानते हैं पैसा क्या है, बुराई की जड़ है। पैसा कमाना बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप पैसे के गुलाम बन जाते हैं तो वो प्रॉब्लम है। इसका अर्थ है आपके लिए, आपका काम करने के लिए आप पूरा समय देते हैं, लेकिन आपको परमेश्वर को समय देने के लिए नहीं मिलता है, तो वो प्रॉब्लम है। So your vision, as I said, the reason I'm speaking about this vision is to understand that the first method of the vision is to be a disciple. And to be a disciple, yes, the fifth pillar is the method. And the method is, first we need to discipline our lives. और क्योंकि मैं शिष्य के बारे डिसिप्लिन के बारे में इसलिए बना रहा हूँ, क्योंकि ये भी एक प्रकार है जो पांचवा खंबा है कलीसिया के लिए, और हमें बहुत जरूरी है अपने आप को शिस्त में लाना, खुद की जिंदगी सही जगह पे रखना। Probably many of us want to have a big church, yes? जैसे कि बहुत लोग चाहते हैं कि उनकी बड़ी कलीसिया हो। But what I believe, okay, a big church is not bringing people from another church. लेकिन मैं क्या एक बात पे विश्वास रखता हूँ, दूसरों की कलीसिया के लोगों को लाकर आप अपनी कलीसिया को बढ़ा नहीं सकते हैं। Yes, you cannot bring a person from another place, another disciple to your church, because you have never discipled him. Yes, and if you have never discipled him and they have never been a disciple, they will never listen to you, no matter what, wherever they come from. और एक बात है कि अगर दूसरी की कलीसिया में जा रहे हैं, अगर आपने उसको शिष्य नहीं बनाया है, आपने उसको सिखाया नहीं है, तो वो आपकी कभी नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर आप उनको सिखाते हैं, वे आपके शिष्य हैं, वो उनको आपने सिखाया है, तो वही आपके साथ रहेंगे। जिसको आपने बनाया नहीं है, जिसको आपने सिखाया नहीं है, वे आपके साथ कभी नहीं रहेंगे, वे जगह बदलते जाएंगे। Your disciple is your child. आपका शिष्य क्या है? आपका खुद का एक आत्मिक बच्चा है। Yes,
So if you do not understand that if your disciple is your child, yes, your disciple is your child, no matter where he goes, will always come back to you. क्योंकि अगर आप अपना जो शिष्य जिसको बनाते हैं वो एक क्या है, आपका खुद का बच्चा है, और जब ये खुद का जब बच्चा रहता है वो कहीं भी जाए, एक बात ध्यान में रखो, वो वापस अपने ही माता पिता के पास आएगा. Yes, the word of God says, we see in the book of Genesis, it says, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it. That's what the right in the beginning God told us. Be fruitful. और जैसे कि शुरुआत में उत्पत्ति में परमेश्वर ने कहा है कि क्या कहा है कि उन्होंने जाओ, बढ़ो और सृष्टि को बढ़ाओ फलदायक बनो और फलदायक बनाओ. What is it to be fruitful? फलदायक बनना इसका क्या कारण है? Yes, people think to be fruitful is to have a lot of children. आपको क्या लगता है फलदायक होना इसका अर्थ क्या है? लोगों को लगता है हाँ मेरे पास ज्यादा बच्चे हैं तो मैं क्या बन गया, फलदायक बन गया. नहीं, फलदायक नहीं बन गया. You understood? You don't become fruitful by giving birth to children. Even animals give birth. बच्चे को पैदा करके आप फलदायक नहीं बनते हैं, क्योंकि जानवर भी बच्चा को पैदा करता है. Yes, but when you give birth to a child, it's so important. Even you see a mother cow or a goat, they look after their babies, right or no? जैसे कि आप देखते हैं जानवर भी जब बच्चों को पैदा करते हैं किस तरह से वे उनका ख्याल रखते हैं. Yes, in the same way I feel that we need to have a vision of looking after our babies. उसी तरह से मैं एक बात समझता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ, हमें अपने बच्चों का ख्याल करना है, हमें उनकी परवाह करनी है. So we have to be फलदायक. We need to be productive in all that we do. इसीलिए जो भी कुछ काम हम हाथ में लेते हैं हमें क्या करना है, फलदायक बनना है. हर काम जब हम हाथ में लेते हैं हमें सफलता पानी है. And to be fruitful, to be फलदायक, yes, as I said, you need to be disciplined. और जैसे कि मैंने कहा है, अगर आप फलदायी बनना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में आप सफलता पाना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है आपको अपनी जिंदगी सही तरीके से रखनी है, आपको डिसिप्लिन में अपनी जिंदगी को रखना है. So your vision gives you a permanent address. Says I need to go here. This is my permanent address. The vision gives you permanent address. तो आपका दृश्यान आपको सही तरीके से एक ही एड्रेस जो आपके लिए पक्का है वही आपको क्या करेगा, बनाए रखेगा, क्योंकि आप जानते हैं आपका अंत यहाँ पे ही खत्म होता है. So the vision shows your destination. Yeah, your destiny is determined by your decision. और यही दृश्यान क्या साबित करता है, आपके Vision मार्ग को shows your destination. वो क्या करेगा, But your destiny shows your decisions you take in life. और जो निर्णय आप लेते हैं और वही आपकी जिंदगी को क्या करेगा, रास्ता बनाकर आपको आगे लेकर जाएगा. आपका दृश्यान आपकी हर निक्षेप पे जो कुछ फैसला आप करते हैं और या लेते हैं, आपकी दृष्टांत पे ही वो बना रहेगा. Yes, so it's very important to understand that to be disciplined is to be a disciple. तो बहुत जरूरी है आपको समझना है, शिष्य बनना यानी क्या, आपको सही शिस्त अपनी जिंदगी में रखनी है. So Proverbs 4:7 says, wisdom is the principal thing. So to do all this, to build the church, you need the wisdom of God. तो हम देखते हैं नीति वचन चैप्टर 4 वचन 7 में, बुद्धि श्रेष्ठ है इसीलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर. जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए. As I said, you may have wisdom but no understanding of how to fulfill that vision. What's the use? जैसे कि मैंने कहा है, आपके पास बुद्धि है लेकिन समझ नहीं है कि इस कार्य को आप कैसे करेंगे, तो क्या प्रॉब्लम है. So the wisdom to build the church is first you need to love people. तो कलीसिया बांधने से पहले पहला कार्य क्या है, आपको लोगों से प्यार करना सीखना है. Yes, you need to start caring for people. If you do not care, you are not concerned, you are not a disciple. Or you have to only look after your own self. Me and mother pot. उसी तरह से आपको
जो आपके आत्मिक बच्चे हैं, उनका ख्याल करना है, प्यार दिखाना है, उनको देखना है, उनका पालन करना है। सिर्फ अपना पेट और अपने आप को ही नहीं देखना है। Yes. So verse we see Proverbs 4:23 says, Proverbs 4:23. नीति वचन चैप्टर 4 वचन 23 में लिखा गया है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। What it says? You have to keep. What does it says? अपने मन की रक्षा करना है। मन की रक्षा। मन क्या है? सिर में है मन। कहाँ है मन? सिर में है कि दिल में है? Yes. Where is your man? Where is your heart? The Bible says, where your heart is, there is your treasure. क्योंकि वचन कहता है, जहाँ पे आपका मन है, वहाँ पे आपका धन है। बराबर। जहाँ मन नहीं है, आपका मन जहाँ है, आपका धन है, और आपका धन यीशु पे नहीं है, तो आपका मन ही नहीं है। Yes, so we got to understand that where our heart is there is our treasure, and Jesus is the treasure. इसीलिए बहुत हमें ये बात को समझना है, जहाँ पे आपका मन है, वहाँ पे आपका धन है, और हमारा धन कौन है? सिर्फ यीशु मसीह है। Okay, and 1 Corinthians 1:24 it says, but those who are called, whether Jews or Greek, Gentiles, yes, Christ is the power of God and the wisdom of God. Yes, it says 1 Corinthians 1:24. Sorry, 1 Corinthians 1? Yeah, 1:24. तो हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों चैप्टर 1 वचन 24 में, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है। कौन है? मसीह। Yes, Jesus is the wisdom of God and he is the power of God. यीशु मसीह परमेश्वर की बुद्धि है और परमेश्वर का सामर्थ्य है। So now, in order for us to see fruit, फलदायक, first what we need to do is we need to take the seed and keep it in our heart. तो हमें फलदायक बनना है, तो पहला हमें क्या करना है? एक बीज को लेना है और हमारे हृदय में उसको गाड़ना है। So I feel, this is what I feel, when Mary received the word of God, from that she is going to conceive by the power of the Holy Spirit, she received the word. What she did, she took it to her heart. She never spoke to anyone. जैसे कि हम देखते हैं, मरियम जब परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा और जब उसको बताया गया कि वो गर्भवती होने वाली है, तो मरियम ने क्या किया? उस वचन को अपने हृदय में उसने गाड़ के रखा, उसने किसी को नहीं बताया। So when she was filled with the Holy Spirit, she was pregnant. You got to understand. Now being pregnant is when you're filled with the Holy Spirit, you're pregnant with Christ. तो हमें समझना है, जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, तो इसका अर्थ क्या है? आप मसीह में पूरी तरह से भर गए हैं। Yes. So when you have Christ in you, yes. For example, I'm sure the mother who's pregnant, she always wants to speak about the baby. That's she's always talking to a baby. Sometimes I don't know. Mothers, they do that. Sometimes they can feel the child moving, and they would like to talk about the baby to everyone. जैसे कि कोई माँ अगर गर्भवती है, तो वो क्या, जब उसका बच्चा पेट में रहता है, तो खासकर वे अपने बच्चे की बातें कहते हैं। वो बोलते हैं कि मेरा बच्चा अंदर से ये कर रहा है, वो कर रहा है, क्योंकि And she's excited. और वो क्या है, वो बहुत उत्साह से भरी हुई है। Yes, she's not sad. वो दुखी नहीं है। So when you have Christ in you, you're excited about life, to live your life. अगर आपकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह है, तो आपकी जिंदगी भी आप उत्साह से बनाएंगे। So you need to be a disciple. That means you need to be disciplined in your life. तो क्या है, आपको क्या करना? शिष्य बनाना है। उसके पहले आपको खुद की जिंदगी शिस्त में लानी है। And we need to have fellowship. उसी तरह से हमें एकता में मिलना है, संगति हमारे बीच में होनी है। No man is an island. Can you believe? Lock yourself in one room and stay for 6 months. No talking to anybody. क्या आप सोच सकते हैं, अगर कोई इंसान अपने आप को एक रूम में बंद करके 6 महीने वो पड़ा है, उस रूम में लॉक करके? Who Kassab was there? Who was the terrorist Kassab? Yeah, he was locked in. He was getting mad.
हम देखते हैं कोई अगर एक रूम में 6 महीने से बंद रहता है तो क्या होगा उस इंसान की हालत, वो मैल हो जाएगा, उसका हालत, दिमागी हालत खराब हो जाएगी। In the same way, fellowshipping is we need to meet one another. We need to be concerned about our. That's how God has made us. He's not made us. Oh, me, and myself. परमेश्वर ने हमें अलग तरीके से बनाया है। वो चाहता है कि उसकी मंडली एकता में आए, संगति में आए और समय बिताए। हमें एक नहीं बनाया कि मैं और सिर्फ मेरी जिंदगी लेकर मैं बैठ नहीं सकती हूँ। So when we say fellowship, we need to meet one another, care for one another. Then we need to have communion. Communion is what? Is sometimes eat together. You don't eat with an enemy. You eat with a friend. और तीसरा है कलीसिया में जब मिलते हैं तो हमें प्रभु भोज में भाग लेना है। यानी जो कुछ प्रभु ने हमारे लिए किया है, जो जिसने हमारे लिए दाम चुका के वहाँ पर हमें एकता में लाना है, तो हमें मिलकर जब हम मिल जाते हैं तो इसमें भी हमें भाग लेना है। So when you eat together, I believe eating is something very, very, very special. When you eat, it could be anything. Yes. और एक बात समझना है, जब हम इस प्रभु भोज में भाग लेते हैं, चाहे कुछ भी हो, जब हम एकता में आते हैं, हम खाना पीना एकता में करते हैं, जब वो खाना खाते हैं, वो एक अलग तरह की एक स्वाद है, एक अलग क्या है, वो एक चीज है जो हम दर्शाते हैं। It is not how much money you have. It is not how much money you have. Having communion is not I'm a rich man, okay, and because I'm rich, I'm giving, I'm having communion. No, you can have bakri. You can have what? They have bakri, right? Roti. Yes. Just eat bakri with a poor person also, and then there's something that unites that person when you eat food together with them. प्रभु को में जो अगर हम भाग लेते हैं, इसका अर्थ नहीं कि मैं जवारी बाकरी। प्रभु को भाग लेना इसका अर्थ नहीं कि हाँ मैं अमीर हूँ, मेरे पास बहुत है, मैं खाना खिला सकता हूँ, नहीं, ये बात नहीं है। प्रभु वो है जब आप एकता में आते हैं, संगति में आप मिलते हैं, कुछ भी खाना होने दो, आप वो आनंद से खाते हैं, या चपाती बाकी कुछ भी हो, तो खाना कैसा भी रहने दो। कहने का एक ही मकसद है कि आप जब खाते हैं उसका आनंद कुछ अलग ही रहता है, उसको कहते हैं प्रभु भोज। And जब आप भूखे हैं, when you're hungry, any food is tasty. जैसे कि आप जानते हैं, अगर आप भूखे रहते हैं, कुछ भी खाना आपको परोसा जाए, वो आपके लिए क्या बन जाता है, बहुत स्वादिष्ट बन जाता है। Suppose when you're hungry, you say, "Maka, आता God है आता, I'm going to fall down." No, you're not going to die so soon. Don't worry. Yes. मानो कि जब आप भूखे रहते हैं और आपको क्या लगता है, चक्कर आता है, ऐसा लगता है कि आपको कुछ होने वाला है, लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूँ, आप भूख से नहीं मरेंगे। Yes. India will never die of starvation or hunger. हमारा भारत भूख के कारण कभी भी नहीं मरेगा। Our nation is a rich nation. हमारा भारत देश एक अमीर देश है। We have great culture. और उनका तरीका, उनका कल्चर क्या है, बहुत बड़ा एक कल्चर रहता है। And our culture, we need to understand that our culture should be a culture which should always be retained. And our culture is to start giving out, giving people what we have. Is not saying this is mine only and start eating yourself. I've got pizza, no? Brought pizza, Domino's pizza, and I want to sit and eat myself. No, start sharing. And when you start sharing, you'll start enjoying it yourself. भारतीय लोगों की चीज कोई अलग है। वो क्या करते हैं, एक दूसरे में मेल मिलाप करके खाना पसंद करते हैं। इसीलिए भारत के लोग कभी भी भूखे नहीं मरेंगे। आपको देने का सीखना है, खुद की रोटी नहीं। जैसे कि आप देखते हैं पिज्जा आता है, आप अपनी जो चीज अच्छी रहती है अपने आप के लिए अलग करते हैं और अलग से खाते हैं, नहीं, हमें इन चीजों का सामना करना है। हमें एकता में रहकर, संगति में आकर प्रभु भोज क्या है वो करके हमें उसका स्वाद देना है। So the communion is a part of us being in oneness, is being united together. Communion means united. If you are not united as a church, we cannot have communion together. Because the word of God says God commands a blessing when brethren dwell in unity. और जब प्रभु भोज के बारे में बातें करते हैं, उसका अर्थ क्या है? जब हम एकता में आते हैं, हमारा एक मन, हम एक मन होकर हम खाते हैं, तभी उसका ये स्वाद अलग रहता है। हमें एकता में आना है और एकता में मिलकर इस खाने में हमें भाग लेना है। Correct? And then it says pray. Who do you pray for? You pray for only your own children.
Baba, Lord, bless my child, bless. We always want only bless our children, yes or no? That's our heart. Every parent's heart is to bless their children. So when you have communion, then you want to pray. You will pray for your children. Your spiritual children you start praying for. और जब हम एकता में आते हैं, प्रभु को में भाग लेते हैं, ओके, तो उसके बाद हमको क्या करना है? प्रार्थना करना है। अभी ये प्रार्थना किसके लिए? खास करके हम पहला प्रार्थना किसको करते हैं? अपने खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए। लेकिन जब आप प्रभु को में भाग लेते हैं, तो हमको प्रार्थना का अर्थ मालूम होता है। हम क्या करते हैं? दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करते हैं। Yes, and we got to understand is the church did not begin in big structures. The church began in homes. तो आपको एक बात समझनी है, कलीसिया बड़ी-बड़ी इमारतों से शुरुआत नहीं हुई है। कलीसिया शुरुआत हुई घरों में, छोटे-छोटे घरों में कलीसिया की शुरुआत हुई। When you welcome the servant of God in your home, you're welcoming Jesus. और जब आप परमेश्वर के सेवक को अपने घर में लाते हैं, उनको बुलाते हैं, तो आप किसको बुलाते हैं? स्वयं यीशु मसीह को बुलाते हैं। So it doesn't matter how big your house is. The very important thing is how big is your heart. ऐसे नहीं कि आपका बहुत बड़ा घर होना है। मेन कारण क्या है? आपका हृदय कैसा है? आपका हृदय बड़ा है, तो आपका घर भी बड़ा है। Unless the seed dies and is sown in the earth, yes, it has to stay there. It will never bear fruit. जैसे कि हम जानते हैं, अगर एक बीज को मिट्टी में गाड़ा जाता है, तो उसको गाड़ना है, उसको मिट्टी में रहना है, तभी वो क्या करेगा? जीवित बनकर वो उगाएगा। You got to understand, when the seed is sown in the mud, yes, there is God's way of using mud to protect it. आपको ये बात समझनी है, जब एक बीज को बोया जाता है, तो और वो बीज जब मिट्टी के अंदर जाता है, तो वहाँ पे कौन कार्य कर रहा है? खुद परमेश्वर उस बीच में कार्य करना शुरुआत करता है। And the Bible says that we have to take God's word, the wisdom of God. Who's the wisdom of God? Jesus is the wisdom of God. Jesus is the word of God. When we take Christ in our heart and we protect Him in our hearts, we'll be fruitful, we'll be for light. उसी तरह से परमेश्वर चाहते हैं, यीशु मसीह क्या है? एक बीज है। जब हम यीशु मसीह को यानी परमेश्वर की बुद्धि को अपने हृदय में बनाए रखेंगे और गाड़ेंगे और उसकी रक्षा करेंगे, वही बीज क्या करेगा? हमारे जिंदगी में क्या करेगा? कार्य करने के लिए शुरुआत करेगा। So God wants us to be फलदायक. He wants us to be productive in everything we do. परमेश्वर चाहता है कि हम हर काम में फलदायी बने और जो जो काम हम हाथ में लेते हैं, हम सफलता पाए। Yes. So today we have touched only on one point is the method. आज हमने एक ही चीज पे बात की है, वो है अलग तरीके का प्रकार। I can rush through all the khambas and say this is one khamba, that is another khamba. Yes, and tell you about all the khambas, and this khamba is not gone in your brains. What's the use? Not gone into your heart. What's the use? You'll have only khambas. जैसे कि आप जानते हैं 7 खंबे हैं। ये 7 खंबे अगर मैं आपको सही तरीके से सिखाता नहीं हूँ, सही तरीके से आपको बताता नहीं हूँ, तो मैं आपकी सिर्फ खंबे के बारे में बात करूँगा। एक खंबा वो खंबा और एक खंबा आपके दिमाग में नहीं जाएगा। And every pillar is important to build the church. आपको ये बात समझनी है, हर खंबा कलीसिया के लिए जरूरी है और उसको हमें तैयारी के साथ करना है। And if you do not, without one pillar, the other pillar cannot support. क्योंकि अगर एक खंबा सही नहीं है, तो दूसरा खंबा उसको क्या करेगा? संभाल नहीं पाएगा। And in the same way, we need to understand that God has asked, He wants His children, His disciples, His children, He wants His children to live a life pleasing to Him. और एक बात समझनी है, परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे पवित्रता से जिंदगी जीकर परमेश्वर को खुश करें। So be excited about living your life. इसीलिए आप उत्साहित रहो अपना जिंदगी इस संसार में जीने के लिए। Do not start blaming everything on a pandemic. हर बात के लिए आपको महामारी के ऊपर दोष नहीं लगाना है। Everyone says corona, corona, corona. हर लोग क्या कहते हैं कि बात कोरोना कोरोना कोरोना। Yes. And now there are some of my friend, my client are talking about corona. They you get corona beer, buy one get one free. Corona. कोरोना की बात इतनी फेमस हो रही है कि उनके खुद के दोस्त कहते हैं कि कोरोना नाम की एक बियर आई है। Yes. So you buy one, you get one free. अगर आप एक खरीदते तो आपको एक फ्री मिलेगी। Yes. So everyone wants to sit and drink beer.
सबको बैठना है और क्या करना है, लॉकडाउन में बैठकर पीना है। It's not going to help. ये आपको मदद नहीं करेगा। You need to focus your eyes on God. आपको अपनी नजर परमेश्वर पे रखनी है। Don't blame things on Corona. महामारी के ऊपर दोष मत लगाओ। Start blaming yourself. अगर आपको करना है तो अपनी खुद की जिंदगी को क्या करो, जिम्मेदार ठहराओ। As our Prime Minister also says, turn your adversity into an opportunity. जैसे कि हमारे पंतप्रधान कहते हैं, आपकी बुराई को आपको क्या करना है, भलाई में उत्पन्न करना है। Yes, get excited about life. Start being creative with your life. Be fruitful with your life. Be productive with your life. आपको अपनी जिंदगी को देखना है, तैयार करना है, बनाना है, उत्पन्न एक सफलता पाने का, एक आशीष पाने का, आपकी जिंदगी को आपको तैयार करना है। Yes, so be excited. As today is Pastor's Day, I want to wish every pastor. और आज का यह दिन खास करके पास्टर लोगों के लिए है, Yes. जो मनाया जाता है, तो मैं सारे पास्टर को प्रार्थना करना चाहता हूँ। Yes, I want to wish every pastor. Yes, every pastor is a father. हमें एक बात समझते हैं, हर पास्टर कौन है, एक पिता है। Every pastor is a mother. हर पास्टर एक माँ है। Yes, so when you are a pastor, you don't have a tag over here, I'm a pastor. No, you don't go by a tag, I'm a pastor. You go by a father and a mother's heart. और अगर आप पास्टर कहलाते हैं और आपको बुलाया गया है, तो आप एक टैग बना के लगाते नहीं हैं, लेकिन आपका माँ बाप, जो आप माँ बाप है, उसका हृदय लेके आप बच्चों को संभालते हैं। Yes, how a mother disciplines, a father disciplines the children, in the same way we need to discipline, we need to disciple our children. You don't tell your son and daughter, sleep. Don't worry, sleep. I will take care of all your work. No coming online. Now online classes also sleep. No. It doesn't work like that. We need to discipline our life. जैसे हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, शिष्य सिखाते हैं, क्योंकि समय के बाद भी सिखाते हैं, उसी तरह हमें भी अपने बच्चों को क्या करना है, सही तरह के शिष्य को सिखाना है, ताकि वो सही शिष्य बने। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। I want each of you to close your eyes and I want you to recommit your life to Christ this morning. और जैसे मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपनी जिंदगी को वापस प्रभु के हवाले करो, उसके आत्मा को। Our Father in heaven, I come before you in the name of your Son Jesus. हे पिता परमेश्वर, मैं आपके सामने आता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। Father, forgive me. हे पिता, मुझे क्षमा कर, for I have not been your true disciple. क्योंकि मैं आपका सही तरीके का शिष्य नहीं बन पाया। Father, forgive me. यीशु, मुझे क्षमा कर। Jesus, come into my heart and be the Lord of my life. प्रभु यीशु, आ मेरे दिल में और बन जा मेरा प्रभु। Thank you, Jesus, for your Holy Spirit. धन्यवाद यीशु, आपका पवित्र आत्मा जो आपने मुझे दिया है। Holy Spirit, help me to live a life pleasing to you on this earth. पवित्र आत्मा, मुझे मदद कर कि मैं मेरी जिंदगी पवित्रता से जी सकूं। I welcome you, Holy Spirit. Come and take charge of my thoughts, my words, my deeds. पवित्र आत्मा, मैं आपका स्वागत करता हूँ। तू ले ले काबू मेरे विचारों पर, मेरे शब्दों पर और मेरे काम पर। Holy Spirit, I give you charge and control of my body, my soul, my spirit. पवित्र आत्मा, मैं आपको कहना चाहता हूँ, तू ले ले काबू मेरे प्राण पर, मेरे शरीर पर और मेरे आत्मा पर। And thank you, Jesus, for your gift of your Holy Spirit. शुक्रिया प्रभु, पवित्र आत्मा का तोहफा मुझे देने के लिए। Help me to live this life holy and pleasing to you. मुझे मदद कर कि मैं मेरी जिंदगी पवित्रता से और आपको खुश जो करती है उसी तरीके से मैं जी सकूं। I make this prayer in Jesus' name. ये प्रार्थना
मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से बोलता हूँ। Amen. Amen. So there are numbers on the screen. If you have any prayer needs, please WhatsApp us and we will continue to pray for you. और हमारे नंबर काफी नीचे दिए गए हैं। आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप उस नंबर के द्वारा व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं। Please do not have big parties. Okay, I would request the church to please refrain and start protecting yourselves. और मैं आप बड़ी से कोई सूचना देना चाहता हूँ, आप बड़े-बड़े मंडली के साथ एकता में मत आओ, अपने आप को संभालो और सावधानी लेनी है हमें। Take care of one another एक दूसरे का ख्याल करो by following the rules. नियम का पालन करके। God bless you and have a great week ahead of you. Announcements for the week. Full Gospel International Assembly live service every Sunday at 6 p.m. Details will be available on social media platforms, that is Facebook, YouTube and Instagram. Please subscribe and follow us. If you have any prayer needs and counseling, please don't hesitate to connect with us on the numbers given below. Now it's time to honor God with our tithes and offering. Jesus said, "It's more blessed to give than to receive," and God does love a cheerful giver. So don't hold back to give in the Lord's house. The church bank details are displayed on the screen. Get in touch with us if you would like us to collect your tithe or offering personally.